Hello all, welcome to the channel. So in the last lecture we discussed about some kind of system of linear equations and we understand the concept of homogeneous and non-homogeneous equations, right? And see that whenever the solution exists, when rank of A is not equal to rank of A augmented with no solution, and if rank of A equal to rank of A augmented with a solution exists, and according to the field as per the finite or infinite, solution may vary, but please remember that always when rank of A equal to 0 or nullity of A equal to 0, sorry, then always there is a unique solution, and if nullity of A is greater than 1, then the finite solution exists if the field is finite, and infinite solution exists if the field is infinite. And in case of homogeneous system, we have a dimension and solution set as follows, right? Now in this lecture we will do some questions and understand the basic concepts we have learned previously, right? So let us start. Question: solve the system of linear equations, right? So equation है x plus y plus z equal to 3, 2x plus 2y plus z equal to 5, 3x plus 2y plus 2z equal to 7, right? So let us form the matrix and augmented matrix of the following linear equation, right? So let us start making the matrix 1 1 1 3 2 2 1 5 3 2 2 7. Now please observe that we have to make the elementary row and column transformations to decide that what is the rank, and depending upon the rank we may conclude or comment that what is the solution of the given linear equation, right? So let us do that. First of all, making the row operations in the R2 row, right, and in the R3 row. So R1 remains the same, 1 1 1 3. In R2 times R2 minus 2 R1, right? That becomes 0 0 minus 1 minus 1 0 minus 1 minus 1 2. In the R3 we have R3 minus 3 times of R1, right? Then please observe, again implementing the row operations, we got 1 1 1 3 0 minus 1 1 minus 2 0 0 minus 1 minus 1, right? So now please observe that what we can say, अगर मैं बात करूँ शॉर्टकट मेथड की, तो बच्चों माइनस वन इंटू जेड इज माइनस वन, मतलब जेड इक्वल टू वन। एक कंडीशन तो ये आ गई। इससे मेरे पास क्या आ गया बच्चों, माइनस वाई प्लस माइनस जेड, ये बराबर माइनस टू आ गया, राइट? तो इससे मेरे पास माइनस वन माइनस वाई माइनस वन बराबर टू आ गया, तो y बराबर वन आ गया, राइट? सिमिलरली अगर y और x को वन रख दिया तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इन द फर्स्ट, वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड बराबर थ्री, तो x बराबर थ्री माइनस टू विच इज वन। तो बच्चों मेरे पास x बराबर वन, y बराबर वन और z बराबर वन, इस तरीके से यूनिक सॉल्यूशन जो है वो निकल के आया, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब देखो unique solution, right? So this way we can check. Otherwise there is also another method, right? So another method, let's look upon the matrix. If we look at the matrix, then rank of this matrix, right, this matrix, then rank of this is equal to rank of this, right, which is equal to 3, right? So rank of A equal to rank of B augmented B, मतलब rank of A बराबर rank of A augmented B, मतलब solution exists. And please check the nullity. So nullity is always non-zero, right? Nullity is non-zero. So therefore what we can say is uh, this rank of A is equal to rank of A augmented B, which is less than 3, right?
तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस तो बन नहीं रहा है बच्चों, हमेशा ऐसा केस बन रहा है यूनिक सॉल्यूशन का केस बन रहा है, क्योंकि नलिटी जो है बच्चों, नलिटी जो है वो 0 आ रही है, ग्रेटर देन 1 नहीं आ रही, इट इज 0। तो एक तरीका तो ये हो गया। पर उससे भी आसान तरीका क्या है बच्चों, ये वाला जिसके अंदर अपन ने डायरेक्टली वैल्यूज निकाल ली और चेक कर लिया कि किस तरीके से रैंक को जो है, किस तरीके से सॉल्यूशन को निकाला जाता है, और सॉल्यूशन निकल गया मतलब सॉल्यूशन कैसा निकला बच्चों, यूनिक निकला। अगर यहाँ पे सपोज करो कंडीशन कुछ ऐसी होती है, देखो मैट्रिक्स को फिर से रिविजिट करते हैं। अब मैं बोलता हूँ सपोज करो कि जो मैट्रिक्स होती है बच्चों ऊपर वाली, वो कुछ ऐसी ना होके कुछ ऐसी होती, 1 1 1 3 0 -1 -1 -2 और 0 0 -1 और 0, यहाँ पे 0 आ जाता बच्चों। तो उस केस में बच्चों रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, मतलब वो उससे छोटा है, ऑफ कोर्स लेस देन 3 है। तो उस केस में बच्चों सॉल्यूशन कुछ अलग होता। जबकि ये अगर केस कुछ ऐसा बैठता, मान लो केस कुछ ऐसा होता कि 1 1 1 3 0 -1 -2 और यहाँ पे ये रो 0 0 0 0 0 हो जाती। तो उस केस में बच्चों अगेन नलिटी ऑफ ए जो है वो बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाती है यहाँ पे, और रैंक इक्वल नहीं होता, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन लग जाता बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। और आपको ये पूछेगा नो सॉल्यूशन का केस क्या, वही बता दो जरा। तो बच्चों नो सॉल्यूशन का केस भी सिंपल है। नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, है ना। तो मतलब 1 1 1 3 0 -1 -2 0 0 0 -1, अगर ऐसा कुछ केस आता तो बच्चों यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए तो बच्चों 2 है, पर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी 3 है, मतलब वो उसके इक्वल नहीं है। मतलब इस केस में बच्चों सॉल्यूशन कैसा आ गया, नो सॉल्यूशन। इक्वेशन होमोजीनियस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऊपर जाके देखो जरा अपन ने क्या सीखा था, इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जब रैंक ऑफ ए बराबर नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड भी आ जाए तो सीधा सीधा क्या लग जाता है बच्चों, नो सॉल्यूशन लग जाता है, राइट। तो इस तरीके से वी कैन कंक्लूड अबाउट द क्वेश्चन दैट हाउ दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि होमोजीनियस हो। सपोज अभी तक अपन नॉन होमोजीनियस की बात करी, अब देखो, अब सॉल्व करो, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन of the system which is homogeneous। तो देखो x plus y minus z 2z बराबर 0, राइट। 5x minus 2y plus z minus w। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे ये एक सेकंड ना, थोड़ा सा गड़बड़ है मामला, एक मिनट को थोड़ा सही कर लो। एक्चुअल में इक्वेशन 4 वेरिएबल में x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w माइनस का बराबर 0, 5x माइनस 2y प्लस जेड माइनस w बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, 0 0 0, मतलब बच्चों साफ साफ पता पड़ रहा है जो इक्वेशन है वो कैसी है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस है, राइट। तो अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो सॉल्यूशन सिंपल है बच्चों, काफी कुछ भी नहीं करना है, मैट्रिक्स बनाओ। देखो 1 1 -1 -2, 5 -2 1 -1 2 -1 2 0, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, 0 0 0, राइट। अब जरा इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो बच्चों। रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही बच्चों ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही ये मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी बच्चों, 1 1 -1 -2 0 -7, राइट, -7 6 9 और 0 -3 4 4, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, 0 0 0, राइट। इस तरीके से। अब जरा गौर से देखो बच्चों, अब जरा गौर से देखो, अब
क्या होगा बच्चों, इसको वापस से रो एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। देखो एक चीज क्लियर है बच्चों, जो मैट्रिक्स है वो F4 से लगाकर F3 तक जा रही है, राइट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ ना बच्चों, वो कुछ ऐसा लगाना है जिससे क्या हो, थर्ड रो भी 0 बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर से, राइट। तो जब डिवाइड करेंगे ना, उसके बाद बच्चों जो मैट्रिक्स बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, 1 1 -1 -2, राइट। R1 सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा, 0 -7 6 9, राइट। और जो R3 है ना बच्चों, उसमें डिवाइड होगा, देखो 0 और ये -7/3 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, ताकि ये 0 माइनस कर सकूं, राइट। तो -3/7 से, तो ये -7 और ये नीचे क्या था ऊपर -3, राइट। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 7 से, राइट। तो ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 10/7, ये आ जाएगा 1/7। और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है बच्चों वो 0 0 0 इस तरीके से बन जाएगी। तो बच्चों ये मैट्रिक्स कैसे बन गई, 3x4 की। अब अगर कोई मुझे बोले तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि बच्चों रैंक ऑफ ए, राइट। देखो रैंक ऑफ टी निकालते हैं, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। देखो ये 4, और मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है बच्चों, F4 से F3। मतलब मेरी रैंक जो है बच्चों, नलिटी ऑफ टी मेरी बच्चों क्या आ गई, 1 आ गई, राइट। तो नलिटी 1 आ गई। और मुझे साफ साफ दिख रहा है बच्चों की जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, जो कि बराबर 3 है, राइट। और नलिटी कैसी है बच्चों, नॉन जीरो। नलिटी नॉन जीरो मतलब नलिटी कुछ ना कुछ है, तो सीधा केस क्या बैठेगा बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बैठ जाएगा, राइट। सिंपल। अब जरा देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये जो है वो कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जरा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y बराबर 3, 2x plus ay, देखो ay बराबर b हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ a की वैल्यू बच्चों 5 हो, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 1 हो, a की वैल्यू 4 हो, या फिर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 हो। तो बच्चों देखो यूनिक सॉल्यूशन का पता करना है, तो यूनिक सॉल्यूशन बच्चों कब आएगा, जब रैंक तो इक्वल हो और नलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखो जरा उस केस में क्या होगा, मैट्रिक्स बनाओ सबसे पहले, 1 2 2 a, राइट। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3 b 3b, राइट। अब जरा इस पे ऑपरेशन लगा दो फटाफट से R2 पे, राइट। तो देखो 1 2 3 और 2 मतलब 0, a -4 और b -6, राइट। इस तरीके से ऑपरेशन बैठेगा, राइट। इस तरीके से ऑपरेशन बैठा। अब जरा मैट्रिक्स को देखो बच्चों, अभी क्या है, अगर मैं सपोज कर दूं, अगर मैं a -4 को 0 कर देता हूँ बच्चों, तो क्या रैंक इक्वल आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो a तो 4 कभी भी नहीं होगा। और ये ऑप्शन कौन सा है बच्चा, ये ऑप्शन है डी वाला। तो हमेशा डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। b की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x minus 4y plus z बराबर 0, 4x plus y minus z बराबर 0 है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है बच्चों, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन हो। तो देखो बच्चों मैट्रिक्स बनाओ, फिर से वही काम करना पड़ेगा मैट्रिक्स का, 1 -4 1 4 1 -2। और होमोजीनियस सिस्टम है बच्चों, अगेन सिस्टम जो है वो होमोजीनियस है।
तो राइट ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगी R2 माइनस 4R1, राइट। देखो 1 माइनस 4 1 0 0 17 है ना, और माइनस 5 1 माइनस माइनस 16, राइट, तो 17 और माइनस 5 और 0, राइट। अब जरा गौर से देखो बच्चों, तो बच्चों रैंक ऑफ ए कितनी आ रही है बच्चों निकल के 2, राइट। नॉन जीरो रो कितनी है 2, रैंक ऑफ ए 2, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितनी आ रही है बच्चों 2, तो रैंक तो सेम है। अब बात करते हैं नलिटी की, तो देखो इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 2 क्रॉस 3, राइट, 2 क्रॉस 3। तो देखो अल्टीमेटली ये क्या जा रहा है F3 से F2, राइट, F3 से F2 ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है, तो नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी बराबर 3, राइट, इस तरीके से जा रहे हैं। तो नलिटी ऑफ टी बराबर 1, तो देखो नलिटी क्या आ गई बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बच्चों जब रैंक इक्वल है और नलिटी 1 आ रही है और सिस्टम होमोजीनियस है, तो उस केस में सॉल्यूशन जो है ना बच्चों वो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बैठता है, राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बैठता है। तो ये जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस वाई सॉरी x प्लस वाई x प्लस ए वाई बराबर b हैज नो सॉल्यूशन, ये 6 लग रहा है एक्चुअल में b है, राइट, हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों देखो नो सॉल्यूशन का केस कब बैठता है, एक ही बार बैठता है सिर्फ जब रैंक बराबर नहीं हो। तो देखो जरा देख लेते हैं 1 1 3 1 ए बी, राइट, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो कंडीशन ऑप्शन कैसे गिवन है बच्चों, ऑप्शन भी देख लो, ए बराबर 1 बी बराबर 3, ए बराबर 1 बी नॉट इक्वल टू 3, ए नॉट इक्वल टू 1 बी बराबर 3, और डी ए बराबर 1 नॉट इक्वल टू 1 और बी नॉट इक्वल टू 3, राइट, इस तरीके से ऑप्शन है। अब जरा मैट्रिक्स को देख लो, इसमें रो ऑपरेशन लगा दो बच्चों, रो ऑपरेशन नहीं जल्दी आएगा 1 1 3 0 ए माइनस 1 बी माइनस 3, राइट। अब देखो नो सॉल्यूशन के केस में बच्चों इसको 0 होना पड़ेगा, रैंक बराबर नहीं है, मतलब साफ साफ पता है कि ए तो क्या हो सकता है 1 हो सकता है, पर ऑगमेंटेड बी की रैंक क्या होगी, तो बी की रैंक जो है वो नो सॉल्यूशन बिठाना है। देखो नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन कब बैठता है इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ऊपर आते हैं रिकॉल करते हैं जरा, ठीक है। देखो जरा, तो देखो नॉन होमोजेनियस के केस में नो सॉल्यूशन तभी बैठता है जब रैंक इक्वल नहीं हो, ठीक है ना, रैंक इक्वल नहीं हो, जैसे कि आपने डिस्कस करा था। तो जब रैंक इक्वल नहीं है बच्चों, तो उस केस में अगर मैं दोनों को 0 बना देता हूँ तो रैंक इक्वल हो जाएगी 1 1, पर मुझे तो रैंक इक्वल नहीं करनी है, तो मुझे तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी को 2 रखना है और रैंक ऑफ ए को 1 बनाना है, ये चीज कंडीशन बनानी है। तो बच्चों इसके लिए साफ साफ पता पड़ रहा है कि a माइनस 1 को बनाना पड़ेगा 0, तो a तो 1 है पर b इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट, इक्वेशन क्या है बच्चों,
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस 2y माइनस जेड, x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 3, 5x प्लस 7y प्लस az बराबर 9 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस कब बढ़ता है? जब रैंक बराबर हो पर नलिटी जो है वो जीरो नहीं हो, नलिटी जीरो नहीं हो उस केस में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ a is, a क्या क्या हो सकता है बच्चों, 4, b1, c3 और d0, राइट। तो ये ऑप्शन है। अब देखो चेक कर लेते हैं मैट्रिक्स बना के, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, मैट्रिक्स बनाओ। तो देखो 1 1 1 1 1 2 माइनस 1 3 5 7 8 9। अब देखो अभी तक जो अपन कर रहे थे ना बच्चों, वो कर रहे थे 2/2 का मैट्रिक्स का। अब 3/3 क्रॉस की मैट्रिक्स आ गई, तो बच्चों उस केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अपन अल्टीमेटली अपन को रैंक निकालनी है अल्टीमेटली, और रैंक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं, राइट। तो देखो रो ऑपरेशन लगा दो, रो ऑपरेशन लगा दो इसमें। तो देखो पहला रो ऑपरेशन लगाया, ठीक है, तो बना 1 1 1 और 1, राइट। R2 पे लगाया, सीधा सीधा माइनस कर दिया, 0 1 -1 -1 -2 और ऑगमेंटेड का 2 3 -1, राइट। और देखो 0 5 है ना, 5 R1, तो 0 2, ठीक है, 7 था, देखो ऊपर 7 था, 7 - 10, 7 - 5 which is 2, right, 7 - 5 और a - 5, राइट, -2 था तो। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 0, राइट। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ, ठीक है बच्चों, एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, एक मिनट ना, यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये 4 है, राइट, ये 4 है। अब जरा एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, तो लगाओ 1 1 1 और 1, ठीक है, 0 1 -2 और 2, राइट। अब इस पे लगाओ R2 - 2 R1, है ना, इसको 0 बनाने के लिए, R3 - 2 R2, है ना, तो 0 0। और जब इसको लगाएंगे बच्चों, तो ये a -5 - 4 +4, राइट, वो हो जाएगा a -1, और ये हो जाएगा 4 - 2, 4 - 4 सॉरी, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 4 - 4, ठीक है। अब है ना, देखो रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी आ रहा है क्या, चेक करो। तो देखो एक पाइवेट, दूसरा पाइवेट, तीसरा पाइवेट, और एक पाइवेट, दूसरा पाइवेट, तीसरा पाइवेट, अल्टीमेटली 0 आ रहा है। तो अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे रैंक बराबर करनी है, तो बच्चों ए के ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है बच्चों, इस a -1 को 0 बनाना पड़ेगा, राइट। तो मतलब a की वैल्यू को 1 बनाना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है ना। तो a की वैल्यू तो हो गई 1। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ, तो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जब नो सॉल्यूशन होगा, और देखो रैंक बराबर है। अब बात करते हैं नलिटी की, भी तो बात करनी जरूरी है बच्चों। नलिटी क्या होगी, तो जैसे ही रैंक 2 हुई, नलिटी अपनी क्या हो गई बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, नो सॉल्यूशन। तो उस केस में बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अब देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन,
इसका और फिर अपन खत्म करेंगे, राइट। तो देखो, लेट ए एंड ए ऑगमेंटेड सी, राइट, represent respectively the coefficient and augmented matrix। ए तो बच्चों क्या है, कोफिशिएंट है, और ए ऑगमेंटेड सी क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ऑफ सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन के सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, और वो भी बच्चों कैसी, एन वेरिएबल्स में, एन वेरिएबल्स के अंदर एन ऑगमेंटेड सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट है। तो अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन। देखो मैनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात चल रही है। इफ बच्चों क्या, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड सी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड सी इक्वल टू एन। तीसरा बच्चों ऑप्शन क्या है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड सी लेस देन एन। चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों, नन। देखो गौर से देखो इस क्वेश्चन को बच्चों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और ए ऑगमेंटेड सी जो है वो मैट्रिक्स और कोफिशिएंट है, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट है, राइट, ऑफ एन इक्वेशंस का और एन वेरिएबल्स में जो की है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या, एन क्रॉस एन, समझ में आ रहा है। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो आप समझो जरा। अब वो पूछे सिस्टम ऑफ मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब केस बैठता है बच्चों, जब या तो रैंक बराबर हो, और रैंक बराबर किस किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, रैंक बराबर नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में रैंक बराबर है, दोनों में से एक ऑप्शन है, राइट। अब दोनों ऑप्शन देखो, अब वो पूछ रहा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या बैठती है बच्चों, नलिटी की। तो डायमेंशन बच्चों, एक अपन ने चीज पढ़ी थी ऊपर, याद करो, जो डायमेंशन था, देखो अपन ने ऊपर एक केस पढ़ा था जहां पे अपन ने ये देखा था कि जो डायमेंशन होता है बच्चों, ये देखो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के अंदर, राइट, तो सॉल्यूशन स्पेस रीजन स्पैन होती है, और रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ बी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, राइट, तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होता है n माइनस रैंक ऑफ ए प्लस वन, देखो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी से अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों कि देखो अपने पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, राइट, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो अब अगर मैं रैंक बराबर कर दूं, सपोज मैं ये वाला कंडीशन लेके चलता कि रैंक n है, तो अगर रैंक n है बच्चों, तो रैंक तो बराबर है, पर नलिटी क्या हो जाएगी उस केस में बच्चों, क्योंकि n वेरिएबल्स का n इक्वेशन में मतलब डायमेंशन भी n है, तो बच्चों रैंक जीरो, नलिटी जीरो हो जाएगा। नलिटी जीरो मतलब नो सॉल्यूशन इन, नलिटी जीरो मतलब अगर रैंक इक्वल है और नलिटी जीरो है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते किसी भी केस में। तो बच्चों नलिटी को हमेशा कुछ ना कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना पड़ेगा, वरना वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। नलिटी अगर जीरो है तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो बच्चों उसी को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं ना, ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो बचा कौन सा, ये वाला ऑप्शन, तो क्योंकि रैंक लेस देन है, राइट, क्योंकि नलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, और नलिटी नॉन जीरो तब होगी, नलिटी नॉन जीरो होगी तभी ये केस बैठेगा। देखो ये वाला केस कब बैठेगा, जब नो सॉल्यूशन हो। ये वाला केस कब बैठेगा, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, राइट, और ये वाला केस कब बैठेगा, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है ना, आया समझ में, चलो बढ़िया है। तो अभी वाले लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे टॉपिक को और गहराई से। थैंक यू।